آپ کے سامنے ہے جسے میں نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے گئے دوسرے نامے کے پہلے باب کی 10ویں آیت سے لیا ہے۔ ہم اسے 2 بار اونچی آواز میں پڑھیں گے اور پھر خدا کے کلام کی طرف جائیں گے۔ جی اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ پھر سے پڑھ دیں۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اپنے اس مضمون کو پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اور پھر ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جائے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ آج کا بیان جو ہے وہ بالکل ہٹ کے ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم ریت سے ہٹ کر بات کیا کریں، ایک مختلف اینگل کے ساتھ خدا کے کلام میں اترا کریں اور پھر خدا کے کلام کی عظیم سچائیوں کا مزہ چکھا کریں۔ تو آج کا مضمون ہے نو مور ڈراما، اور ڈراما نہیں، اور کوئی ڈراما نہیں۔ آپ یقینی طور پر میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹی وی کے ڈراموں کی طرح کیسی ہو چکی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا حال ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی طرح سے ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انڈین ڈراموں کے جیسے ہے۔ ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا نہیں کہ تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور خواتین خاص طور پر جانتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کوئی ڈرامہ ختم ہوا، کب کوئی شروع ہو گیا، کب کوئی پھر ختم ہوا، کب کوئی پھر شروع ہو گیا، اور یوں گھنٹوں گھنٹوں بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر ان ڈراموں کو دیکھتے ہیں۔ ایک بات ہی یاد رکھیے گا، اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ جب میں اور آپ کچھ دیکھتے ہیں نفسیات کی روح سے، دیکھنے کے بعد ہم اپنے اندر اس کی ایک پکچر بناتے ہیں۔ جو کچھ بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں، پھر دیکھنے کے بعد ہم اپنے اندر اس کی ایک پکچر بناتے ہیں، اور پھر اس پکچر میں اپنی مرضی کے رنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھنے کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کس قسم کی تصویر بناتے ہیں، اور اس تصویر کو بنا کر پھر میں اور آپ اسے کس طرح کے رنگوں سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس میں میں اور آپ شوق رنگ ڈالتے ہیں یا کہ ہم پھیکے رنگ ڈالتے ہیں، اس میں ہم خوشی کے رنگ ڈالتے ہیں یا اس میں ہم غم کے رنگ ڈالتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور میں آپ والدین سے ایک گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مہربانی سے اپنے بچوں کو اچھی اچھی تصویریں بنا کر دکھایا کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی غلط پکچر لے کر نہ آئیں،
کیونکہ ایک بار آپ کے بیٹے یا بیٹی نے اس تصویر میں کسی بھی طرح کا رنگ ڈال دیا تو پھر وہ رنگ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اس لیے والدین ہونے کے ناطے وقت نے اور تجربے نے یہ سکھا دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنے خاندان کو لے کر، کبھی اپنے دوستوں کو لے کر، کبھی اپنے چرچ کو لے کر، کبھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو لے کر، کبھی اپنے پیار کرنے والوں کو لے کر نیگیٹو قسم کی پکچرز جو ہیں ان کے سامنے پورٹریٹ نہ کریں خدا کے لیے، ان کو بخش دیں. آپ بڑے جو ہیں ممکن ہے کہ آپ کا اوپینین بالکل فرق ہو، اور ممکن ہے کہ آنے والے کل میں جب بچے انہی تصویروں کو دیکھیں تو ان کا اوپینین جو ہے وہ بالکل فرق ہو. اس لیے نو مور ڈراما. یہ ڈراموں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں رک جانا چاہیے. اب آئیے ذرا ایک سوال کے ساتھ آگے بڑھیں. ان ڈراموں کا جو کس طور میرے اور آپ کے خاندان میں چلتے ہیں اس کا کارن کیا ہوتا ہے؟ اور میں جب اس اینگل سے غور کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ بائبل مقدس کی دنیا میں ایسے بہت سے خاندان ہیں جہاں ڈرامے جنریشن ٹو جنریشن چلے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، برکت جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہے، لیکن قرض اور لعنت بھی جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہوتا ہے. برکت کو بھی آپ روک نہیں سکتے اور لعنت کو بھی آپ روک نہیں سکتے. ہاں، خداوند یسوع مسیح کے بخشے ہوئے اختیار کی روشنی میں اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو قرض رک سکتا ہے، لیکن اگر آپ بریک نہیں لگاتے تو پھر یہ قرض جو ہے جنریشن ٹو جنریشن، نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا. اچھا، کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ میرے نوٹس پر 4 مرکزی باتیں لکھی ہیں. پہلی بات، ہماری شخصی زندگی میں اور ہماری خاندانی زندگی میں ڈرامے اس لیے بند نہیں ہوتے کیونکہ ہم گناہ کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے. یہ ڈرامے شخصی اور خاندانی زندگی میں ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم گناہ کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. اپنے گھروں میں جا کر رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت اسی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ڈرامے کیوں بند نہیں ہوتے؟ دوسری بڑی وجہ اس لیے کہ ہم خدا کے ساتھ سنسیئر اور وفادار نہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ سنسیئر ہوں، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوں تو یہ بریک لگ سکتی ہے. یہ ڈراموں کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم بریک نہیں لگاتے تو میں نے کہا پھر یہ سلسلہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جاتا. ایک چھوٹا سا ریفرنس کوٹ کرنے لگا. ابراہم کی زندگی کو ذرا سامنے رکھیے گا. سارہ اور ابراہم کے کردار کو ذرا سامنے رکھیے گا. اپنی زندگی میں انہوں نے کس قسم کے ڈرامے نہیں کیے. میں 20 ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن ابھی ملک کے حوالے سے جو ڈرامہ انہوں نے کیا، یہ تو میرا سونا رب ہے جو ہماری عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے، ورنہ شوہر نے خود ایسا ڈرامہ رچا کر اپنی بیوی کی عزت داؤ پر لگا دی. ایسا نہیں ہوا. اب ذرا سنیں میں نے کیا ابھی سکھایا.
ये ड्रामे जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। अगर बाप ने ऐसा किया तो बेटे ने भी ऐसा किया, और अभी मालिक के हवाले ही से लिखा है कि उसके सामने इसहाक ने भी अपनी बीवी को अपनी बहन कहा। बाप ने भी वही खता की और बेटे ने भी वही खता की। और फिर कहूंगा कि ये तो रब खुदाम है जो इज्जतों को महफूज रखता है, वरना कुछ भी हो सकता था। चलें एक और रेफरेंस ले लेते हैं। याकूब ने अपने भाई को और याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, और आप जानते हैं कि उसने किस तरह का ड्रामा रचाया। आप सब जानते हैं। मैं इस्राएल की बात कर रहा हूं, मैं याकूब की बात कर रहा हूं कि उसने किस तरह का ड्रामा रचाया, किस तरह से ड्रामाई अंदाज में पहले तो बर्थ राइट ले लिया, और उसके बाद किस तरह से उसने अपने मां के कहने पर अपने बाप को भी और अपने भाई को भी धोखा दिया। अब जनरेशन टू जनरेशन ये सब कुछ चलता है और चलता रहेगा। अगर याकूब ने अपने बाप के साथ ऐसा किया, तो याकूब के बेटों ने अपने बाप याकूब के साथ भी ऐसा ही किया। वो भी कैसा ड्रामा किया। किसी जानवर को मार के उसका खून ले आए और अपने बाप को कहा कि अब तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। नो मोर ड्रामा भाई, ड्रामे बंद करें। और अगर हम इस किस्म के ड्रामे बंद नहीं करेंगे, धोखाधड़ी का काम जारी रखेंगे, इस तरह से किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर समझ लें मुमकिन है कि वो नुकसान हमारी औलाद को भी बर्दाश्त करना पड़े। तीसरी बात, ये ड्रामे क्यों नहीं रुकते, और मैं कहूंगा कि संगत की वजह से। ज़बूर 1 को कभी आपने पढ़ा है इस तनाजुर में? ज़बूर 1 में क्या लिखा है? मुबारक, ब्लेसेड, खुदा का पसंदीदा, खुदा का फेवरेट कौन है? जो बुरे शख्स के साथ, अब जरा गिनते जाइएगा, ABC वाला मामला है। जो बुरे शख्स के साथ ना तो खड़ा होता है, ना उसके साथ चलता है, ना उसके साथ बैठता है। और जब ये तीनों काम नहीं होते तो फिर मामला सीधे सीधे रहते। और जब कोई पटरी से, ट्रैक से उतर जाता है, तो फिर उसे मुसरफ की तरह सब कुछ भुगतना पड़ता है। इसीलिए लिखा है कि हमें शरीरों के साथ ना तो खड़े होना है, ना उनके साथ बैठना है, ना उनके साथ चलना है। आज हमारी यंग जनरेशन जो है वो कंधे उछाल कर कहती है, पैसा हमें अच्छे बुरे का पता नहीं है। वो देखें जी, हम तो फलां तरह के लोगों के साथ भी रहते हैं, लेकिन हमने कभी असर नहीं लिया। अरे क्या बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने असर लिया? आपने असर लिया है, आप असर ले रहे हैं। आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से, आपके आइडियाज से पता चलता है कि आप इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं। चौथी बात, क्यों ड्रामों का ये सिलसिला रुकता नहीं? क्योंकि हमने शैतान को बड़ा हल्का सा ले लिया हुआ है। शैतान बहुत बड़ी पावर है भाई, बहुत बड़ी पावर। इस अजीम किताब में उसे इस जहान का खुदा कहा गया है, इसको कभी ना भूला करें। अच्छा याद रखें कि जब आप शैतान को हल्का सा लेते हैं ना, तो शैतान इस बात पर बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये बात उसकी फेवर में जाती है। तो शैतान को कभी हल्का सा मत लें। दाऊद ने जो कुछ किया उसे बड़ा हल्का सा लिया।
हल्का सा लिया। फिर मैं एक और रेफरेंस कोट करने लगा हूं, उसने हल्का सा लिया। उसके ज़हन में यह था कि मुझे कौन क्वेश्चन कर सकता है, किस में जरूरत है कि वो मेरे सामने खड़ा हो, किस में जरूरत है कि वो मुझसे इस किस्म की बात करे। लेकिन कादिर खुदा ने नातन को उसके सामने खड़ा कर दिया और खुदा ने दाऊद से ये कह दिया कि अब ये वाला कर्ज जो है ना, ये शर जो है वो तेरे घर से नहीं जाएगा। और आप जानते हैं कि दाऊद के अपने बेटे अमनून ने अपनी बहन के साथ ज्यादती की, और अभी सलूम के बारे में हम जानते हैं वो दिन दिहाड़े अपने बाप के हुजरे में चला गया और उसने अपनी मां के साथ ज्यादती की। जनरेशन टू जनरेशन ड्रामा करेंगे तो फिर ड्रामा आपके साथ भी होगा। उसकी अगली किस्त के लिए तैयार रहे। ये किस्त दर किस्त चलने वाले ड्रामे हैं। सो खुदा के लिए रोक लगाएं। अब सवाल पैदा होता है कि मैं और आप कैसे गालिब आए, कैसे मैं और आप रोकें ताकि वो जो हमारे साथ हुआ है हमारी औलाद के साथ ना हो। क्या करें मैं और आप? 6 बातें मेरे नोट्स पर हैं, मेहरबानी से नोट कर लेंगे। पहली बात, अपने फहम पर तकिया ना करें। ये कभी भी ना कहें कि मुझ में बड़ी अकल है। ये कभी भी ना कहें कि मैं अपने शोबे में माहिर हूं, और ये कभी भी ना कहें कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास एजुकेशन है। आपके पास सुलेमान से ज्यादा है। अपने फहम पर तकिया करेंगे तो मारे जाएंगे। कहां लिखा है? इंसान की किताब के 3 बाब में। अपने फहम पर नहीं, अपनी अकल पर नहीं, क्योंकि कोई अकल के साथ बदी से बच नहीं सकता, और कोई सैमसून के जैसा ताकत के साथ कहे कि वो बदी से बच जाए, नहीं बच सकता। इसीलिए खुदा के कलाम में आया है, ये ना जोर से और ना ताकत से, सिर्फ रूह से, तेरे रूह से। और मैं यहां थोड़ा सा इजाफा करूंगा, सिर्फ तेरे फजल से, तेरे फजल से सब कुछ मिलेगा। तो कभी भी ये ना कहें कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, मुझे अपने फहम पर, अपनी दानिश पर, अपनी इंफॉर्मेशन पर, अपनी नॉलेज पर फख्र है। याद रखें, जहां मेरी और आपकी अकल, मेरी और आपकी एजुकेशन, मेरी और आपके नॉलेज की इंतहा होती है, वहां से मेरे रब खुदावन की अकल शुरू होती है। दूसरी बात, जब कभी ड्रामों का यह सिलसिला बने तो फौरी तौर पर यिर्मयाह की किताब के 23वें बाब की 3री आयत की रोशनी में खुदावन को मदद के लिए पुकार लें, खड़े हो जाया करें और कहा करें, आए खुदावंद हम डूबने लगे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा खुदावंद आज भी पतरस की तरह, इस तरह पतरस को उसने बचाया, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और आपको डूबने से बचाएगा। लेकिन आपको खुदावंद को पुकारना पड़ेगा। तीसरी बात, ये ड्रामों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन कब? जब हम लोगों के हवाले से अपने कान, दुनिया के हवाले से अपने कान बंद और अपने रब खुदावंद के हवाले से अपने कान खोल लेंगे। इसे कहते हैं कानों को ट्यून करना। और जब तक कान ट्यून ना हो, बात नहीं बनती। पादरी के बच्चों के कान ट्यून नहीं थे, लेकिन एक चर्च बैरा जो है उसके कान ट्यून थे। मैं एली का जिक्र कर रहा हूं, मैं सैमुअल की बात कर रहा हूं। पादरी के बच्चों के कान ट्यून नहीं थे, वो नहीं सुनते थे,
उनके कानों तक, उनके अंदर तक खुदा की आवाज नहीं जा रही थी। लेकिन एक छोटा बच्चा सैमुअल जो है, उसने अपने कानों को ट्यून कर रखा था, इसलिए आवाज उसके कानों में पड़ती रही। चौथी बात, जब कभी इस किस्म का सिलसिला हो, खुदा हमें ऐसे ड्रामों पर उकसाए, खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए मेरे यीशु की तरह और डांटे इब्लीस को। लिखा है तुम उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और मैं आपको तरीका बताता हूं, बिल्कुल वही तरीका होना चाहिए जो खुदा यीशु मसीह का था, सख्त रवैया। शैतान के हवाले से हमारा रवैया सख्त होना चाहिए और हमारे अल्फाज यही होने चाहिए, आए शैतान दूर हो, आए शैतान दूर हो। और जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक वो दूर नहीं होगा। पांचवी बात, बुरी सोबतों से बचें, क्योंकि बुरी सोबतें जो हैं वो अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं। इसलिए बुरी सोबतों से बचें और उन लोगों के साथ अपनी जिंदगी के सिलसिले रखें जो खुदा के लोग हैं, जो मुकद्दस हैं, जो खुदा में पाक किए गए हैं। वो यकीनी तौर पर आपके लिए भी बरकत का बायस होंगे। छठी बात, ड्राइविंग सीट से उतरे हुए आज रात और ड्राइविंग सीट पर खुदा उनको बिठाएं। जिंदगी का रिमोट कंट्रोल छोड़ें और अपने रब खुदा उनको दे दें। उसको कहें कि अब तेरी मर्जी के मुताबिक चैनल चलेगा, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं। जो तू कहेगा वही होगा, अब से मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होगी। इसलिए मैं दस्तबरदार होता हूं और तुझे अपने दिल के तख्त पर बिठाता हूं, ताकि तू मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में और हमारी कलीसियाओं में राज करे। यीशु को बिठाएं मेरी ड्राइविंग सीट पर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर लेंट सीजन में हमने ये कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ड्रामों का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो किसी का आज कोई ड्रामा नहीं होगा। फिर शौहर और बीवी में कोई ड्रामा नहीं होगा, फिर वालिदैन और औलाद में कोई ड्रामा नहीं होगा, फिर बहन भाइयों में कोई ड्रामा नहीं होगा। शर्त यह है आप ड्राइविंग सीट पर यीशु को बिठाएं। और देखिए आपका फायदा यह है, मैं और आप, हम जितने यहाँ ड्राइवर हैं, ड्राइविंग सीट बड़ी मुश्किल होती है भाई, हॉट सीट कहते हैं इसको। मैं जब बच्चों के साथ, मैं कभी भी ड्राइव करके अब जबरन नहीं गया, क्योंकि अरमान कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप पीछे आराम से रिलैक्स होकर बैठा करें, ताकि आप एनर्जी रखें अपने पास और फिर उस एनर्जी को खुदा के लिए जाकर इस्तेमाल करें। मुझे बड़ा अच्छा अंदाजा है कि पिछली सीट पर जब हम बैठते हैं तो हम कितने रिलैक्स होते हैं। तो जिंदगी में रिलैक्स होना चाहते हैं तो फिर पिछली सीट पे जाए ना भाई। आप ड्राइविंग सीट पर क्यों हैं? यीशु को बिठाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज की मरकजी आयत की रोशनी में, उसने हमें छुड़ाया है, वो हमें छुड़ाएगा। उसने पास्ट में हमें छुड़ाया है, अब वो हमें छुड़ा रहा है और वो हमें छुड़ाएगा। अच्छा चलें इसको कोविड के हवाले से भी ले लें तो इस आयत की रोशनी में उसने हमें हलाकत से बचाया है, वो हमें बचा रहा है और वो हमें बचाता रहेगा। वो हमें बचाता रहेगा। अब इसको आज के उन्वान की रोशनी में यूं ले लें, वो हमें ड्रामों से, गलीज किस्म के ड्रामों से जो लोग रचाते हैं, माजी में बचाता रहा है, वो बचा रहा है और वो हमें बचाता रहेगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें खुदावंद पर ट्रस्ट करना होगा, अपने फहम पर नहीं। ड्राइविंग सीट पर अपने रब खुदावंद को बिठाना होगा।
तो फिर आइए आज खड़े हों और एक प्रैक्टिकल करें। प्लीज खड़े हो जाए। मेरी दरखास्त है हाथ जोड़कर आपसे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद कर। अगर मैं और आप शैतान को वाकई शर्मिंदा करना चाहते हैं इस लेंट सीजन में, अगर मैं और आप वाकई उसके दांत खट्टे करना चाहते हैं इस सीजन में, तो फिर मेहरबानी से इस दुआ का हिस्सा बन जाए। अपनी आंखों को बंद कर लें, छोटी सी दुआ हम करेंगे। मेरे पीछे पीछे कहें, अरे खुदावंद, हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि तू हमें बचाता रहा है, तू बचा रहा है, और हम जानते हैं, हम ये सीख चुके हैं कि तू बचाता रहेगा। फजल बख्श कि हम अपनी जिंदगी में बढ़ना भी सीख लें और घटना भी सीख लें। फजल बख्श कि हम इस चीज को सीख लें कि सब चीजें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करती। फजल बख्श कि मैं लर्निंग के अमल से गुजरता रहूं, और आज से ड्राइविंग सीट पर मैं ना हूं, तू हो। अरे खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तेरे हवाले करता हूं। ले और मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने चैनल्स पर चला, यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब मिलकर शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, तुम हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।